So, a very good evening to one and all who are present here. My name is Engineer Harshvardhan Purohit, and I am Director and Founder and CEO of SIN School of AI. So, today in this particular session, we will be discussing about the analytics, how we can present the things. As you all know, to learn how to master the marketing, yes, we have just we organized the session on this particular topic, and in this particular session we will be discussing about how we can present our that project or any kind of data stuffs or analytics to the end user or in the industry perspective, right? Till now you all have learned about the prompt engineering, the basics of it. Now we will learn that in the industry scenario how we can exactly present it to the recruiter, to the manager, to any kind of personality. So for that particular thing, I would like to invite, or I've invited one great mind of marketing, whose name is Mr. Karan Lakhanpal sir. So it's pleasure, sir, to invite you, sir, in this particular session, and it will be great for us, like if you will motivate us, like how we can present our stuff and how we can use the skill of prompt engineering, how we can use the skill of presenting the things, like because you all know, like Steve Jobs have once said, like if you have a great product and if you can't present it, it is of no use. So as we all know, like this, we know now how to create the things, but we don't even know like how we have to present this particular thing to the industry person, right? So for that particular thing, I have called Mr. Karan Lakhanpal sir. So he is working as a business executive, development executive at Sterling Hospitals. We all know a growing chain and very popular chain in complete Asia of hospitals. This particular chain is located in Ahmedabad, and he is currently working there as business development executive. So it's pleasure, sir, to be with you. So now we can proceed with the session, sir. Thank you. Thank you very much, Harsh. Hello, guys. Am I audible, Harsh? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So, first of all, thank you for being invited me as the guest in your today's podcast. So, it would be very fruitful कि हम आज बहुत अच्छे अच्छे टैक्टिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हु आर बीइंग सिटेड ऑन दिस टेबल, ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर? हर सारे इंजीनियर्स हैं? यही बताएंगे सर, यही बताएंगे. Okay, so the table is all yours, guys. So first of all, introduce yourself with your name and your designation, like that आप अभी presently in which course और आप किस में pursue कर रहे हैं अभी presently? Good evening, sir. My name is Aksh Daga. I have completed Yes. my class 12th and I am pursuing BTech. Okay. Okay, Harsh. Thank you. Next. Good evening, sir. I'm Sahil and I'm pursuing BCA from JIET. Okay, Sahil. Next. Good evening, sir. My name is Siddharth Kumar Sancheti. I am pursuing BCom from Jaipur Okay. University. Okay, okay. Good evening, sir. Myself, Shivranjani. I did BCom MBA and pursue data analytics course. Thank you. Good evening, sir. My name is Mohit Mehta. I am pursuing BCA first year from Lucky Institute of Professional Studies. Okay. Hello, Mohit. Good evening, sir. My name is Piyush Pariyar. I am pursuing BCA first and second semester in Lucky College. Okay. Good evening, sir. I am Priyansh Chandak. I am pursuing BCom. Okay. Good evening, sir. Myself, Chavi Shah. I am a BCA student. Okay. Good evening, sir. My name is Namra Bhandari and I am pursuing BCA. Good evening, sir. Myself Dheeraj Jain. I am studying 11th class. Okay. So, first of all, thank you to all the students. So, shall we start our session? Sure, sir. Sure, sir. We can start. Okay. So, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनों का भी इंट्रोडक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, इन विच लैंग्वेज आर यू रियली कंफर्टेबल?
हम इसे हिंदी में स्टार्ट करें या मिक्स लैंग्वेज में या प्रॉपर इंग्लिश में? मिक्स। मिक्स, ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है इस पॉडकास्ट को लेकर के? एक एक स्टूडेंट करके बताएगा। ठीक है, तो अपन सर सेशन के साथ प्रोसीड करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपन पहले सेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद अपन Q&A सेशंस पे जाएंगे। तो Okay. जैसे कि यहाँ पर अपन ने सबसे पहली चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में कि कैसे अपन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका बहुत सारा जो टाइम है स्टर्लिन हॉस्पिटल में गया है और वहाँ पर आपने चीज़ें सीखी है, ब्रांडिंग और ऑल। तो जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर किया है, तो कैसे वो चीज़ों को प्रेजेंट करें? दे नो हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, दे नो हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड ऑल। तो बट एक्चुअल प्रेजेंटेशन में क्या ये चीज़ें हैं जो ये दिमाग में रखें उसको और बेटर करने के लिए, वो ये सब जानना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन इनका यही है। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, the first and the most foremost thing is that prompt engineering, we have gathered all the things that would be required to make a presentation, slides, or all kinds of things. So first of all, majorly that I am also working from now onwards, I am also working in Sterling Hospital in the oncology department. I am handling its oncology department, which is a very biggest as well as a टफ डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है। टफ इन द सेंस में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि नाम से थोड़ा सा क्वेरी और फिशी टाइप लग रहा है। टफ इन द सेंस दैट इट्स अ कैंसर डिपार्टमेंट, इट्स अ कैंसर इंस्टीट्यूट। सो वी हैव टू मार्केट द थिंग्स इनटू अ वेरी सीक्वेंस एंड इनटू अ वेरी करेक्ट सीक्वेंशनल वे। क्योंकि ये है कि आपके पास में सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्क कर रहे हैं एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, सो व्हाट आर द टैक्टिक्स दैट यू शुड हैव टू ब्रिंग इट ऑन योर टेबल्स एज वेल एज इनटू योर स्लाइड्स एंड इनटू योर प्रेजेंटेशन स्किल। सो सी इन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको डायरेक्टली लिंक करके शेयर करूंगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन यूज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग into different kinds of scenario. First of all, क्या होता है guys students की when we are approaching someone else, for example previously I have also worked as 1 month, मेरे पास में 1 महीना पहले ये डेंटिस्ट डिपार्टमेंट था। I am leading the dentist department as a you can say that आप उसको HOD भी कह सकते हैं, अपनी layman language में you can say anything about that. So the responsibility is that I have to convert the patient, the outcome of patient into a correct and sequential way. अब वो sequence कैसे बनेगा? For example, you are visiting the dentist that whom you don't know that हम किसके पास में जा रहे हैं. So first of all, you have to take his या her appointment out from that. Okay guys. उसके बाद में आपका क्या रहेगा? आप 1-on-1 जाकर के उनसे मिलोगे। अब यू ऑल आर स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एंड हर्ष आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, जिसमें हम भले ही अब वी आर ऑल्सो स्टेप अ फुट इनसाइड इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग वी आर ऑल्सो अ लर्नर। तो हमारे दिमाग में भी फर्स्ट टाइम ये क्यूरियोसिटी एक तरीके की बनती है कि इनसे ये पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट या एक हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड में क्या रहता है कि डॉक्टर को जाकर के क्या क्वेश्चन करेंगे यार 1 मिनट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि वी हैव टू ग्रीट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जो भी वहाँ बैठा है, जो लेडी बैठी है या जो भी जेंटलमैन वहाँ बैठे हैं, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग वी शुड हैव टू say about our services, because healthcare marketing is very different arena from all kinds of things. आप मार्केटिंग देखेंगे तो मार्केटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल इफ एनीबडी हैव द स्कूल ऑफ AI या any kind of thing, so he or she would be approaching toward the students that you should opt for our schools. So सीधा कस्टमर या कंज्यूमर के माइंड में एक ही क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि अच्छा ठीक है,
आपने ब्रांडिंग भी कर दी, लोगो भी लगा दिया, आपने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन भी कर दी, सारी एक ओपनिंग, यू हैव आल्सो प्रेजेंटेड अ फायरली ओपन स्पीच एंड ऑल दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स. So now from onwards, the curiosity would be opening from you all kind of students that हम इसका ही कोर्स क्यों ले या हम इनका ही कोर्स क्यों ले. Why should we opt for that kind of things also, guys? So उसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कि आप सब बैठे हैं एज अ ऑडियंस, फ्रॉम मी ऑल्सो, मेरे दिमाग में भी एक सीधा सा क्वेश्चन आएगा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड में आता है कि सर सारी चीजें तो ठीक है, आपका ही कोर्स, व्हाई शुड बी ऑप्ट फॉर यू ओनली यू. तो फिर वो आपको कंपेयर करके दिखाएंगे, सर वी आर गिविंग दैट काइंड ऑफ डिस्काउंट कूपन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू शुड गेट फॉर द कैशबैक ऑल्सो. नाउ इन दैट काइंड ऑफ थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 या 5 कस्टमर ऐसे आपके इनपुट से आउटपुट के अंदर कन्वर्ट भी कर दिए, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द marketing deal would be closed only and only on the present as well as possible tactics of that kind of thing. For example, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी प्रेजेंटेशन उन्हें बहुत पसंद आई, that sir my name is Karan Lakhanpal, let me introduce myself also, that I am working in Sterling Hospital as a business development executive in unit Bhaili, and we are coming here to present our amenities that what we are providing to the customers. और ऐसे करके एक छोटा सा क्रिस्प एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसके बाद में डॉक्टर को सारी चीज पसंद भी आ गई. अब नाउ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग, अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक पेशेंट आपके यहाँ पर भेज दिया कि सर ऐसे ऐसे फलाना पेशेंट है और उसे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, सो सर प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और इससे ये ठीक होकर के जाना चाहिए. चल ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है गाइस? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? तो जैसे अभी आपने बताया, तो इसका मतलब ये है कि अपन ने एक बार की सपोज प्रेजेंटेशन वगैरह बना ली, या अपन ने अपनी कोई भी डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए चीज बना ली, तो इसमें वाई एक तो पहले क्लियर होना चाहिए कि यूएसपी क्या है उस पर्टिकुलर चीज की, जो भी अभी आपने बताया वो मेन चीज इम्पैक्ट देगा कि मैं बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे हूँ. तो यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे अपन ने लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाई या अपन ने इंस्टाग्राम, देयर आर मेनी सोशल मीडियाज नाउ डेज कि हम जिस पे अपडेटेड रहना चाहें, तो उसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर हमें किसी को, जैसे अगर एक जॉब इंटरव्यू के लिए किसी को अपना सीवी शेयर करना है, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है कि अगर किसी के पास अभी तक जॉब नहीं, क्योंकि इन सब ने अभी स्किल सीखी है, अब इनको अपनी एज एन इंटर्नशिप और जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो ये कैसे कर सकते हैं? कुछ उसके लिए एडवाइस आप दे सकते हैं सर, तो इनके लिए बढ़िया होगा ये. ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर का कि हाउ वी कैन अप्रोच एनीवन दैट दे शुड, या ही या शी, एनीवन जो भी वहाँ का एचआर है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर है, सो बाय दे वो कैसे हमें अप्रोच करेंगे फॉर द जॉब के लिए. सो गाइज बेसिक क्लियर्स हमारे इस चीज के अंदर होने चाहिए गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई वुड नॉट सेइंग दैट इंस्टाग्राम बंद कर दो, लेकिन गाइज अगर हमें वी हैव टू स्टेप आउट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो ये इंस्टाग्राम वगैरह हमारे किसी काम का नहीं है गाइज. बिकॉज गाइज अब यू हैव ऑल्सो लिसन द वर्ड लिंक्डइन, आप सब लिंक्डइन चलाते भी होंगे शायद मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि सारे टेक्निकल ग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो मेरे हिसाब से यहाँ सबसे पहले मुझे बताइए प्लीज, रेज योर हैंड्स दैट हु आर ऑप्टिंग फॉर लिंक्डइन. लिंक्डइन कौन कौन रन करता है? अच्छा, लगभग सभी चलाते हैं. ओके, वेरी गुड. तो गाइज ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज लिंक्डइन एक बहुत ही बेनिफिशियल, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये ऐसा ओशियन है गाइज. इस पर आप सबसे पहले कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी एचआर को या किसी भी ऐसे प्रमोटर को जो कि आपको जॉब देने में या इंटर्नशिप देने में हेल्प करेगा. बी फ्रैंक एंड बेसिक विद ऑल द थिंग्स गाइज. आजकल कंपनी विदाउट इंटरव्यू इवन इंटर्नशिप भी हायर नहीं करती है. आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर स्टर्लिंग हॉस्पिटल विच इज अ वेरी गुड एंड वेल नोन ब्रांड by only and only giving the interview for the internship round. अब आपको ये सुन करके लग रहा होगा कि सर इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू कौन देता है? ठीक है, ये आपसे पहले इंटर्नशिप करने से पहले MBA सेकेंड सेमेस्टर में हम भी सोचते थे कि अरे क्या है यार, इंटर्नशिप तो कोई भी ले लेगा.
क्या बड़ी बात है, क्योंकि हमने वहां कोई जिंदगी तो गुजारनी नहीं है। वी हैव आल्सो ओनली एंड ओनली स्पेंडिंग 3 to 4 months। आपको इंटर्नशिप का क्राइटेरिया भी पता होगा, मिनिमम 45 डेज एंड मैक्सिमम 6 months। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप का आपका क्राइटेरिया होता है गाइस, वो हर्ष आपको ब्रीफ कर देगा। कहने का सिंपल सा मीन्स ये रहता है गाइस दैट इवन मैं अपनी इंटर्नशिप की बात करता हूँ तो द जोनल डायरेक्टर ऑफ स्टर्लिंग हॉस्पिटल एज वेल एज द फैसिलिटी डायरेक्टर ऑफ स्टर्लिंग हॉस्पिटल हैज टेकन माय इंटरव्यू। दैट आप इतनी दूर से आए हो, बिकॉज बड़ौदा यहाँ से करीबन 550 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है गाइज, अपने जोधपुर से 600 किलोमीटर है। तो आप अगर इतनी दूर से कहीं जा रहे हो ओनली एंड ओनली ऑप्टिंग फॉर द इंटर्नशिप, तो ये सब चीजें तो ठीक है गाइज। एक इंटरव्यू सिनेरियो का बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे I am the director and I am taking your interview as a marketing intern to join into the Sterling Hospital for 4 months। तो मैं गाइज अब आपको सबसे पहले, ये तो जर्नल इंट्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, मोहित, ईशा, निशा, इशिता, वॉट एवर द नेम्स। अब उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट मैं गाइज आपको ये पूछूंगा कि स्किल सेट वगैरह तो सारी चीजें ठीक है। मुझे ये बताइए, आप 600 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, तो व्हाट वुड द ब्रांड किक gives you that kind of kick या ट्रिगरनेस। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना। तो किस टाइप का आपको किक या ट्रिगर मिला है कि आप इतनी दूर से यहाँ आए हो। ठीक है गाइस, बिकॉज द गोइंग इनटू गेटिंग स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नॉट वी कैन से दैट ये हलवा नहीं है गाइस, क्योंकि वहां जाकर के आप रूम भी लोगे, बहुत सारी चीजें रहती है गाइस आपके साथ में। ठीक है, फिर कुछ चीजों में हमें सफर भी करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें हैंडमेड मिलती भी नहीं है वहां पे। अपन घर थोड़ी ना जा रहे हैं एक घर से दूसरे घर, तो ये चीजें रहती है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा कि आपके पास में वो आंसर रेडी होना चाहिए कि सर कंपनी अच्छी है, वो सारी चीजें तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये बताइए कि 4 महीने में आपको काम सिखाऊं, तो आप में वो क्वालिटी क्या है। वो क्वालिटी देखिए गाइस, पता लगेगी एक तो आपके सीवी से। सो अपडेट योर सीवी एज सून एज पॉसिबल। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर किसी ने नहीं भी करना स्टार्ट किया तो अभी देर नहीं हुई है, उसे अपडेट कीजिए। अपडेट किस तरीके से किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, आपके पास इतना अच्छा मेंटोर है हर्ष, ही इज अ वेरी गुड गाय, ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम BTU यूनिवर्सिटी, और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। तो इसका जितना हो सकता है यूज लीजिए। ठीक है गाइस, ये आपको AI में भी मास्टर करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज मार्केटिंग स्किल्स और टेक्टिक्स के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। ओके गाइज, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू शुड हैव टू फिगर इट आउट दैट हाउ यू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। फॉर एग्जांपल, मैं ही आपका इंटरव्यूअर हूँ, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू शुड हैव टू मेंटेन अ डिग्निटी इन सेल्फ, दैट यू शुड हैव टू स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो आपका इंग्लिश अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको इंटरव्यू को जो है एक स्टेप असाइड, एक कहते हैं ना नदी पार करनी है, तो उसको पार करने के लिए गाइस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बी फ्रैंकली। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिंदी, गुजराती, जैसे गुजरात जा रहे हो तो गुजराती इजीली चलती है वहाँ पे, और आप सीख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो गाइस कहने का मीन्स ये है कि आपको इन चीजों का बेसिक ध्यान रखना ही जरूरी है। और उसके बाद में गाइस जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स तब काम आएगी जब आपको किसी तरीके का एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था गाइस ब्रांडिंग का, दैट यू हैव टू, मैंने खुद ने मांगा था आगे होकर के गाइस कि सर मुझे काम करते हुए आई हैव बीन वर्किंग, पुरानी बात बता रहा हूँ लास्ट ईयर की प्रीवियसली, कि सर अब मुझे 2 महीने तो हो गए हैं, नाउ कैन यू प्लीज गिव मी। आपको देखो गाइज, बी फ्रैंकली, अपॉर्चुनिटी मांगनी पड़ेगी, ऐसे कोई देगा नहीं आपको आगे उतर के। तो आप यू शुड हैव टू स्पीक वेरी फ्रैंकली इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, मेंटोर, जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कि सर मुझे 1 महीना दीजिए टू प्रूव माई स्किल सेट्स। सो आई हैव बीन गिवन द प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट होटल्स। मेरा टारगेट ये था गाइज कि मुझे 1 महीने में 14 इवेंट करने थे। ठीक है, 14 इवेंट्स गाइज, इट्स अ काइंड, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ CSR एक्टिविटी इवेंट गाइज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंट होता है गाइज, जो कि यू हैव टू प्रमोट एंड यू हैव टू गियर अप योर ब्रांडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट होता है जैसे डिसाइडेड रहता है गाइज। मैंने होटल्स में किया था, तो मैंने बड़ौदा के
जो प्रीमियम होटल्स है वहां पर गाइज 64 इवेंट्स किए थे, एंड आई वुड बी गिवन सो मच ऑफ एप्रिसिएशन एज एंड काइंड्स ऑफ मैनी ऑफ द थिंग्स दैट मुझे वहां से सीधी जॉब ऑफर हो गई गाइज। सो इस तरीके की कुछ चीज जो है गाइज, आप सबके अंदर बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और काफी सिंसियर स्टूडेंट्स लग रहे हैं, तो इस तरीके का गाइज एक एंथुसियाज्म अपने अंदर रखना जरूरी है। उसके अंदर कुछ गलती भी होती है ना तो चलेगा, उसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब ऐसे ही सीखते हैं। हमसे भी हुई थी बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारी चीजें हो जाती है, हम आगे इसे डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें रहता है हर्ष। बिल्कुल सर, काफी of अच्छी all, बात आपने आपका- बताई कि इंटरव्यू के बारे में आपने जो पर्सपेक्टिव बताया, तो थोड़ा आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस को और इलेबोरेट कर सकते हो, जिससे ये इन लोगों को एक तरीके से आइडिया लग जाए कि इनको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या इंटरव्यू कभी भी ये लोग फेस करें तो इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई भी एक दो स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ले सकते हो गया तो वो और बेस्ट हो जाएगा, छोटा सा ऑन दी सेशन ओनली, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी सी। ठीक है, बिल्कुल। कौन वॉलंटियर करेगा? लाइक आप में से कोई करना चाहेगा वॉलंटियर? बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, जॉब भी ऑफर कर दे, क्या पता आप में से किसी को। कोई भी, एनीवन वांट टू ट्राई? इट्स जस्ट अ मॉक, इट्स नॉट, इफ यू विल नॉट ट्राई हाउ यू विल लर्न। ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी कर सकता है। छवि ट्राई करेगी सर सबसे पहले। ठीक है, ओके। छवि आप हो? Sir, am I audible? यस 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 छवि। Yes, sir. सो गुड इवनिंग छवि, Good evening, sir. हाउ आर यू? Sorry. हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल टू यू? Yeah, sir. I'm very good. How are you? I am fine. So, first of all, tell me about yourself, Chavi. Sir, I'm a BCA student. I've done various workshops related to web programming, AI mastery, prompt engineering, and I'm still in second semester, so I'm just pursuing everything. Okay. और कुछ हो गया इंट्रोडक्शन आपका? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं, काफी अच्छा था वैसे। क्लैप फॉर गाइज, क्लैप फॉर हर गर्ल्स के लिए, इस लड़की के लिए तालियां बजाई जाए। ओके, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल छवि ने एक मॉक प्रैक्टिस थी जो कि अच्छी की, काफी अच्छी की। सो छवि और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, आप लोग गौर से सुनिएगा। फर्स्ट इंटरव्यू जो है आपका, इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना चाहिए, लेकिन इतना क्रिस्प ना हो कि जो बंदा आपके सामने बैठा है उसे, मतलब जैसे देखिए, स्टूडेंट्स बी फ्रैंक, उसे बेसिक चीजें आपके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन को इसका एक फिक्स लेमन तरीका होता है जो ऐसे स्टार्ट होता है कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सर, माई नेम इज छवि, जो भी आपका सरनेम है, छवि मल्होत्रा। I am pursuing my career or classes from Sin School of Technologies Private Limited. I am from Jodhpur. एंड सबसे पहले तो आपने प्रीवियसली जो चीजें डन की है ना, आप उनके बारे में बताइए, 2-3 चीजें। उसके बाद में आपने पास्ट में क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ गाइस। आई हैव ऑल्सो डन मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो होल्डिंग सेकेंड पोजिशन इन MLSU उदयपुर। और उसके बाद मैंने JIET से अपना MBA भी कंप्लीट किया इन मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो गाइज, जैसे आपके पास में आपका मास्टर्स आपने किया, जैसे हर्ष ने किया है, हर्ष अभी कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ गाइज आपका लेमन फॉर्म होना चाहिए, जिससे ये है कि एक मोटी तौर पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को, या जो भी रेस्पेक्टेड HOD वहां पर हु हैज बीन सिटेड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट वुड बी इजीली एबल टू नो दैट हाँ, आखिरकार ये कैंडिडेट मुझे कहना क्या चाह रहा है और ये है क्या। क्योंकि गाइज, जो 15 सेकंड्स होते हैं ना उस इंटरव्यू के, वो एक क्लिंच रोल प्ले करते हैं। दैट वुड बी प्लेइंग अ क्लिंच रोल टू सेलेक्ट यू एज ऑन द जॉब रोल एज वेल एज ऑन द इंटर्नशिप ऑल्सो गाइज। मैंने गाइज करीबन 30 इंटरव्यू दिए गाइज, तो मैं सही
आपको यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ गाय हर्षवर्धन पुरोहित। ये इंटरव्यूज काफी दे चुका है, ठीक है, और मैंने भी कई चीजें जो है इससे ही सीखी है। तो कहने का मतलब मीन्स गाइज ये है कि अपन जोधपुर जैसे एक बड़ी सिटी के अंदर है, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है गाइज। जैसे अपने आई स्टार्ट के अंदर गाइज एक जीतो फेयर करके लगता है गाइज, जो कि जैन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, वहां जाइए। कुछ नहीं तो गाइज एक एक्सपीरियंस ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने को सेलेक्ट ही होकर के आना है, लेकिन ये है कि आप गाइज वहां से काफी चीजें सीखोगे। वहाँ आसपास लोग बैठे होंगे, आपको बैठने का तरीका आएगा गाइज। किसी भी प्रेजेंटेटर के अपार्ट आपको कैसे बैठना है, वहाँ चाय रखी होगी, आपने को किस तरीके से पीनी है, स्नैक्स खाने का क्या तरीका होता है, बहुत सी चीजें आपको गाइज समझ में आएगी। जब हम भी बाहर गए थे तो लोगों को देख करके ही हमने सीखा था गाइज। क्योंकि इसकी देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई अलग से ट्यूटोरियल नहीं होता डेट। अब हम हर चीज के लिए थोड़ी ना क्लास लेने चले जाएंगे कि नहीं यार चाय का कप कैसे पकड़ना है। अब ये तो आप भी अंदर सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हो आप, इस चीज की कोई क्लास थोड़ी ना ली जाती है। लेकिन गाइज इसका भी एक टेक्निक होता है, ये हमें अब आकर के मुझे भी इनफैक्ट अब आकर के इस चीजों के बारे में पता लगा है। तो बहुत सी चीजें रहती है गाइज। जैसे अब आपने यू हैव ऑल्सो लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आपको मेल करने का भी एक तरीका जो है आपको आना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मेल टू एनी डायरेक्टर, एनी सीईओ, या आपके साथ का कोई वर्किंग कलीग है उसे कैसे मेल करना है, किस तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हर्ष का मेल बहुत अच्छा होता है, आप ये चीज हर्ष से लर्न कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका मेल जब भी आता है मतलब पढ़ने में मुझे भी वाकई मजा आता है। तो ये चीजें है कि हर्ष आपको मेल के ऊपर अच्छी तरीके से गाइडेंस दे देगा। हर्ष प्लीज नोट दैट, सबसे पहले तो इन्हें मेल करना सिखाइएगा सभी स्टूडेंट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो ये चीज है कि हर्ष इन चीजों के अंदर, हर्ष हैज अ वेरी गुड एक्सपर्टीज, और आपके पास में इतना अच्छा मेंटोर है, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ थिंग। आप हर्ष से काफी चीजें सीख सकते हैं, और हर्ष ने और हमने साथ में काफी इंटरव्यूज दिए हैं। तो गाइज ये है कि इंटरव्यू में जाइए, देखिए, और अपनी झिझक जो होती है ना अंदर की, एक क्यूरियोसिटी, उसको ब्रेक डाउन कीजिए गाइज। सर जैसे एक और क्वेश्चन था, लाइक मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था और आई होप सब में होगा कि अब जैसे हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद हमने डेटा एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा कदम रखा था जब हमने रिपोर्ट्स जनरेट करी थी। तो आपने एमबीए में भी, क्योंकि मैं खुद एक एमबीए स्टूडेंट हूँ और मेरे को भी आगे प्रोजेक्ट्स और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी रिपोर्ट्स और इन सब की, तो इसका कोई ऐसा फॉर्मेट होता है या रिपोर्ट क्रिएशन में क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए? हम जैसे अगर किसी भी चीज़ की रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसकी 3 चीज़ें, उसको बनाते कैसे हैं और दिमाग में हम क्या चीज़ें रखें, और अगर हम किसी केस स्टडी पे वर्क कर रहे हैं तो हम कैसी अप्रोच को फॉलो करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये जानना चाहेंगे सर। ओके हर्ष, सो स्टूडेंट्स सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया है आपके मेंटोर के द्वारा। गाइस सबसे पहले तो ये है कि रिपोर्ट का जो अप्रोच करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है उसके टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड सो मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड आवर एमआरपी रिपोर्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स इन स्टर्लिंग हॉस्पिटल। सबसे पहले मैंने हेल्थ केयर सेक्टर जो है ऑप्ट किया था। सो आई वुड बी वेरी अपलॉज्ड and very much appreciated in front of the interviewer as well as in front of my mentor कि करण बहुत शानदार टॉपिक लिए। लेकिन उसके बाद में उस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा फिशी मैं भी हो गया, क्योंकि गाइस हेल्थ केयर एरिना बहुत बड़ा एरिना है, ठीक है। इवन अगर मैं किसी को भी फ्रैंकली क्वेश्चन कर दूं कि इंडिया के अंदर कितने हॉस्पिटल सेंटर्स है, तो शायद गूगल भी एक्यूरेट नहीं बता पाएगा गाइस, क्योंकि अब तो ये हाल हो गया है कि हर घर के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर आ चुका है। अभी ये इस तरीके का सिनेरियो होता जा रहा है गाइस। इवन अपने जोधपुर में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। तो गाइस जैसे जो ये क्या कहते हैं एमबीबीएस नहीं है, जैसे ये हकीम वैद हो गए, बंगाली बाबा टाइप के ये डॉक्टर्स हो गए गाइस, उनके पास कभी जाना नहीं चाहिए गाइस।
मैं उनके लिए कोई मतलब कोई हेटर स्पीच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गाइज ऐसे बहुत सारे हैं, ये यहीं पर ही नहीं बड़ौदा में भी बहुत है गाइज, जहाँ पर पेशेंट जाता है उनके पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम आल्सो एमबीबीएस डॉक्टर। सो दोबारा से चलिए गाइज टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये है कि आपका जो टाइटल है वो टाइटल आपके टैक्टिक्स से मेल खाना चाहिए। बिकॉज गाइज हमने कहने के लिए तो गाइज शोबाजी के अंदर इतना बड़ा टॉपिक उठा लिया कि हेल्थ केयर एरिना। अब आपने कभी किसी की रियल ब्रांडिंग देखी है? आपको जैसे फॉर एग्जांपल गाइज मैं ही एग्जामिनर हूँ, आप सब ने टॉपिक क्या ले लिया, एक सिमिलर टॉपिक दैट यू आर प्रेजेंटिंग एन एमआरपी रिपोर्ट ऑन ब्रांडिंग मार्केटिंग एंड सेल्स इन हेल्थ केयर सेक्टर। चलिए जी, तारीफ हो गई कि बहुत शानदार, यू आर ऑप्टिंग फॉर अ वेरी गुड टाइटल एज वेल एज योर प्रोजेक्ट इज वेरी गुड इन ऑल दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ब्रीफिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे ये बताओ कि कितने हेल्थ स्टार्टअप्स है ऑल इंडिया के अंदर? चलिए वो भी बता दूंगी। कितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है अभी इंडिया के अंदर, आप बता सकते हो? रोज हर 5 और 10 मिनट के अंदर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नया आता है अकॉर्डिंग टू अ लिंक्डइन रिपोर्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद में ऐसी बहुत सी चीजें हैं गाइस जो कि हम नहीं बता पाते हैं कि कितनी एमिनिटीज है एक हॉस्पिटल, कितनी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स, दैट वन मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल इज गिविंग हाउ मेनी एमिनिटीज। एमिनिटीज से मतलब है गाइस सर्विसेज कितनी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज होती है गाइस जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, और टाइटल को जो है छोटा लेना है जिसे हम बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि यार अपना प्रोजेक्ट सबसे शानदार होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है गाइस कि टॉपिक कोई ऐसा अफलातून टाइप का उठा लो जिसको लेकर के पूरा ही नहीं होगा। वैसे बहुत बार होता है गाइस, हमारे ग्रुप में भी बहुत से स्टूडेंट्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन टॉपिक तो ले लिया इतना लंबा चौड़ा महाराणा प्रताप टाइप का कि मतलब एक बार तो एग्जामिनर भी सुने तो पागल हो जाए, लेकिन उसके बाद में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। हार करके उन्हें टॉपिक को दे हैव टू स्विच ऑन अनदर टॉपिक के, अरे यार जैसे तैसे करके हमारे पासिंग मार्क्स आ गए। तो गाइज ऐसा टॉपिक लेने की भूल कभी भी नहीं करनी, क्योंकि उसके टैक्टिक्स आप कहाँ से इकट्ठा करोगे यार, मुझे ये बात भी तो बताओ। चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ खुराफाती दिमाग होते हैं जो कि कह देते हैं कि यार हम तो एआई से सारी चीज ठीक लेंगे, ठीक है, क्योंकि गाइज बी फ्रेंकली ये कॉलेजेस में बहुत ज्यादा चलता है। तो आप लोग अभी कॉलेज गोइंग कुछ स्टूडेंट्स है, एक आधा बच्चा 11th-12th में भी है, तो आप ये देखते होंगे टेक्निकल ग्राउंड के अंदर गाइज ये चीज बहुत ही नॉर्मल होती है दैट दे हैव बीन टैक्टिक्स जो है गाइज इजीली नेट से प्रॉम्प्ट बना करके जो है चोरी कर लिए। चोरी भी नहीं कह सकते गाइज, एक तरीके से आप उसको कहोगे कि कामचोर टाइप का होता है, क्योंकि गाइज सबको पता होता है कि इतनी दूर टैक्टिक इकट्ठा करने के लिए जाएगा कौन। ठीक है, अच्छा किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप अगर अप्रोच भी करोगे तो कोई आपको अपने टैक्टिक्स क्यों देगा गाइज एक मिनट के लिए? अगर आप मुझे ही पूछोगे कि हाउ मच रेवेन्यू और प्रॉफिट इज बीइंग अर्निंग स्टर्लिंग हॉस्पिटल इन अ 1 मंथ, तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा गाइज, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपका बी ब्रीफ विद योर टॉपिक, दैट आप टॉपिक आपकी अप्रोच क्या है उसके लिए। और सबसे पहली चीज आपका कुछ विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन उसको लेकर के बहुत क्लियर होना चाहिए। एक 3rd सेमेस्टर में हमारा टॉपिक था गाइस कि हमें एक ग्राम पंचायत के अंदर जा करके उन्हें एजुकेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। तो मैंने हर्ष की भी मदद ली थी और हमारा प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रोजेक्ट रहा था, जिसे अवार्ड भी मिला था। तो कहने का मीन्स ये है कि आपका टॉपिक जो है, आपका विजन मिशन उसके लिए क्लियर होना चाहिए गाइस। टैक्टिक्स तो क्या है, बहुत बात की बात आ जाती है गाइस कि आप एनालिटिक्स तो तब इकट्ठा करोगे जब आपको उसकी जो ब्रीफिंग है वो शॉर्ट होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, काफ़ी ये चीज़ आपने इम्पोर्टेंट बताई कि टॉपिक सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो, कि अगर हम ऐसे कुछ भी टॉपिक ले लेंगे जो हमें उसकी नॉलेज प्रॉपरली नहीं है, तो हमें टॉपिक सिलेक्शन से पहले भी एक 1 लेयर ऑफ रिसर्च करनी चाहिए कि हम किस डोमेन का टॉपिक ले रहे हैं और उस तक पहुंचने के टोटल स्टेप्स हमारे पास क्या है, हम उस रास्ते तक कैसे पहुंचे। हमने स्टार्टिंग चीज़ देख ली, एंड देख ली। अब सर जैसे एक लाइक मेरा भी क्वेश्चन है और आप सबका भी हो सकता है इसमें हो, कि जैसे अभी जैसे हॉस्पिटल में आप जैसे सिनेरियो है
तो एक रेज्यूमे स्क्रीनिंग जैसी चीज़ होती है, एटीएस जिसको अपन कहते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो मेरे को ये चीज़ जाननी थी, और कि ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जो हम हमारे रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू की जॉब रोल जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम एटीएस में, क्योंकि एक बार में 4 से 5 हज़ार रेज्यूमे एक साथ साइट पे आते हैं, और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा रेज्यूमे रिजेक्ट हो गया, कि क्या हुआ और क्या ऐसे फैक्टर है। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है, और हम ऐसा रेज्यूमे कैसे क्रिएट करें जिससे हमारा एटीएस रिजेक्ट ना करे रेज्यूमे को। ओके, सो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है हर्ष ने। स्टूडेंट्स लिसन प्रॉपरली एंड केयरफुली। एटीएस के बारे में गाइज आप सबको पता होगा, क्योंकि यू आर ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो ये एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है गाइज। बेसिकली ये करता क्या है, ये इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया जो है बिठा देता है गाइज, ठीक है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बोलूंगा, जिससे आप इजीली एक बार में अंडरस्टूड हो जाओगे गाइज, दैट एक ऐसी क्राइटेरिया जो है वो अगर एटीएस के अंदर अगर हम सेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने 12 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक एग्जांपल, और मुझे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को लेना है, मैं सैलरी दूंगा 40,000 रुपीज, ठीक है गाइस। एक एग्जांपल कि मेरी और हर्ष की खुद की कंपनी है। अब मुझे लेने सिर्फ एक या 2 बंदे ही है, आ गए उस पोस्ट के लिए 12 बंदे। अब उन 10 को मैं ऐसे तो मुंह पर कह नहीं सकता कि भाग जाओ यहाँ से। तो गाइस जो एटीएस होगा वो ये काम करेगा कि हम उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया ऑलरेडी फिट कर देंगे, जैसे कि एज क्राइटेरिया डाल दिया, परसेंटेज का क्राइटेरिया डाल दिया गाइस। आजकल एमबीए कॉलेज जो 20 स्कूल्स है वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं गाइस, फॉर एग्जांपल फॉर द सिलेक्शंस, मैं उन 20 स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एसपी जैन हो गया आपका, आईआईएम अहमदाबाद हो गया, या एबीसी जो है आपके अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, दे आर, इनका अपना खुद का एटीएस एक ट्रैकर तैयार होता है गाइस। ये क्या कर देते हैं कि कैंडिडेट को 1 से 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए ऑप्ट कर रहा है, ठीक है गाइस। और अगर नॉर्मल एमबीए के लिए कर रहा है तो एक परसेंटेज क्राइटेरिया कर देंगे कि 99% कैट में होने चाहिए, 80% या 85% अबव होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ग्रेजुएशन के अंदर भी 80 या 85 होने चाहिए, और अगर उसने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके अंदर भी 70 होने चाहिए। अब गाइज फॉर एग्जाम्पल 4 लाख एप्लीकेंट ने फॉर्म भर दिया आईआईएम अहमदाबाद के लिए, ठीक है। ये एक रफ अप्रोक्सीमेशन गाइज बता रहा हूँ, तो आप उसको जाकर के ऐसे ऑफेंड मत होइएगा कि सर ने तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बता दिया। तो गाइज जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख या 4 लाख में फॉर्म भर दिया, अब लेने कितने हैं गाइज, 200 या 300 बंदे लेने हैं। लेंगे कैसे, क्योंकि बैच साइज ही 200 का है, तो आधे 3.5 लाख या 3,90,000 बंदे तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि गाइज देखो, बहुतों के 80-85% 10th-12th में सिमिलर नहीं होते, और चलो होंगे भी तो वो ग्रेजुएशन में एक ना जगह जा करके तो उसका एक थोड़ा, जिसको हम कह सकते हैं, डाउनफॉल जरूर आता ही आता है। तो आधे से ज्यादा गाइज एटीएस उस ट्रैकर की रेस से बाहर हो गए। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1000 आदमियों को दे हैव बीन शॉर्टलिस्टिंग द इंटरव्यू फॉर 500 या 1000 को बुला लिया, उसमें से आधों की तो इंग्लिश ही ढंग की नहीं होगी, आधे ऐसे इररिलेवेंट फील्ड में काम करते होंगे या उन फील्ड्स में होंगे जो कि उस आईआईएम के क्राइटेरिया से मैच ही नहीं होगा। लास्ट खैच काच के जो है कितने स्टूडेंट हो गए गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 में से 700 कर दिए तो 300 बच गए। अब सीटें हैं 200 की गाइस, तो आधों को तो 200, अब उनको पता है कि 200 हमने लेने कौन से हैं, लेकिन ये है कि आधों को फिर वो वेटिंग लिस्ट में अटकाएंगे या कुछ उनको इस तरीके से करेंगे कि आप यू शुड ऑप्ट फॉर दैट काइंड ऑफ कोर्स। क्योंकि क्या आईआईएम्स के अंदर गाइस बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो कि अच्छी काउंसलिंग करते हैं, और मैं अगर रिकमेंड करूंगा किसी को भी इस तरीके का चांस मिले तो कोई भी आईआईएम छोड़ना मत, क्योंकि उसकी वैल्यू अपने आप में ही बहुत है गाइस। तो कुछ इस तरीके से वो ट्रैकर वर्क करता है गाइस। फिर उसके बाद में आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर आपको एक ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा आपकी मेल के ऊपर पे, फॉर एग्जांपल यशवी या छावी, यू आर बीन सेलेक्टेड फॉर द रोल फॉर द 2-year MBA program at IIM Ahmedabad, please deposit your fees at this account, and अब आपका सेशन जो है 1 जुलाई या 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से गाइज ये एटीएस जो है वर्क करता है। नॉर्मली क्या होता है गाइज, मार्केटिंग एरिना के अंदर एटीएस का रोल थोड़ा सा कम रहता है गाइज, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड रोल्स के अंदर जाओगे, जैसे एआई हो गया या और दूसरी तीसरी चीज हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे आप यू आर बीइंग हायरिंग फॉर द रोल ऑफ एनालिस्ट इन मैकेंजी एंड मॉर्गन स्टैनली, तो गाइज ये बहुत हाई प्रोफाइल कंपनीज है
जिनकी स्टार्टिंग पैकेज ही 40 लाख रुपए से होती है गाइस। एवरेज पैकेज होता है गाइस एक आदमी का 40 लाख। अब वो 40 लाख गाइस ऐसे तो दे नहीं देगा तुम्हारे को, तो उसमें इन चीजों का काफी रोल होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है गाइस, अपने जैसा इंसान ही उसको क्लियर करता है। बस ये है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके का आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि आप वो जो कहते हैं ना अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर अपने को कलेक्टर बनना है, जैसे बहुत सारे यूपीएससी एक्सपीरियंस एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, कि कहते हैं कि कलेक्टर बनना है, लेकिन बनते गाइस पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 ही है। तो वो बनते 1000 इसलिए नहीं है कि बाकी मूर्ख है जनता, वो इसलिए है गाइस क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, वो सब इस तरीके का अपने आप को ढालना पड़ता है ना गाइस उस चीज के लिए। 40 लाख आपको मेरे को बताओ कौन क्यों देगा, या इवन मैं ही मांग लूं तो मुझे क्यों देगा? आखिरकार मुझ में ऐसा मेरा अपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा हो, या मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरीके का हो कि मैं बात मतलब मेरे पास इस तरीके की नॉलेजेबल स्किल्स हो, या मेरा स्किल सेट इतना अच्छा हो, तो मुझे देगा गाइस, वरना तो कोई क्यों मुझे देगा। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वर्क करते हैं गाइस। आपका सीवी हो गया, परसेंटेज हो गए, फिर आपके अंदर स्किल सेट कितना है, आप वाकई आपकी ड्राफ्टिंग किस तरीके की है, एक आपका रिटर्न एग्जाम भी ये लोग लिखवा करके देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसी है, इंग्लिश एरर्स कितनी आ रही है, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कितनी है। एक टाइमर सेट कर देंगे कि 10 मिनट के अंदर आपको 2 पेपर भरने। वो 2 पेपर भरने का मतलब अपने को अब अकबर ने बीरबल से कहाँ से लड़ाई की और चढ़ाई की वो नहीं लिखना है। कहने का मीन्स ये है कि देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग फ्रूटफुल इन काइंड ऑफ इन पेजेस गाइस। तो इस तरीके की चीजें होती है जो कि एक मैं कहना चाहूंगा एक एमबीए स्टूडेंट एज वेल एज एक टेक्निक बैकग्राउंड के अंदर होनी बहुत जरूरी है। Now sir, like we can good to go for Q&A session. Like किसी के अभी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड? हाँ, एक साहिल पूछना चाहता है सर। हाँ Hello, sir. I'm audible. यस सर, बोलिए। Sir, my question is that like how to build a strong personal brand. पर्सनल ब्रांड, ओके। पर्सनल ब्रांड किस मतलब किसके लिए आप कहना चाह रहे हैं? Like personal branding, like खुद की branding होती है ना, like influencer type जैसे लोग जो लोग होते हैं उनकी खुद की personal branding होती है। ओके, उस टाइप से। ओके साहिल, तो साहिल सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग में डिपेंड करता है कि आपका मिशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बियर बाइसेप्स में है रणवीर अलाहाबादी, उसकी Yes, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। या राज शमानी को ले लो एक एग्जांपल, Yes, sir. ठीक है, दोनों पॉडकास्ट करते हैं और दोनों ही सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ टैक्टिक्स जो है एक दूसरे को उससे बेटर बनाते हैं, वो हो सकता है गाइस। अब इसके अंदर गाइस बहुत सी चीजें जो है बिल्डअप हमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो एक काम माइंडसेट चाहिए। काम माइंडसेट से मतलब एक शांत दिमाग हो गया गाइस। फिर आपकी फिजिकल पर्सनालिटी, फिर आपका फॉर एग्जांपल अब हमने पॉडकास्ट ही शुरू कर दिया, ठीक है, एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तो ये कि गाइस कोई आपके पॉडकास्ट को क्यों देखेगा, या तो उसके अंदर कुछ फ्रूटफुल या इंसाइटफुल कंटेंट होना मौजूद जरूरी रहता है गाइस। क्योंकि लंबा चौड़ा पॉडकास्ट तो गाइस ये है कि कोई भी अपलोड कर देगा, एक एग्जांपल। लेकिन अगर उस कंटेंट के अंदर दम नहीं है तो गाइस वो आप ज्यादा दिन तक आप उसको यू कांट अफोर्ड एज वेल एज यू कांट एबल टू रन दैट काइंड ऑफ थिंग्स इनटू योर यूट्यूब चैनल, और वो कोलैप्स हो जाएगा किसी भी कारण से। तो गाइस ये है कि सबसे पहले तो कंटेंट के अंदर जो है द कंटेंट शुड बी इनटू अ वेरी स्ट्रांग मैनर। सेकंड थिंग, आपने उसको स्टार्ट क्यों किया है गाइस? क्योंकि ये है कि अब तो एक मैं कह सकता हूँ कि एक फैशन हो चुका है, या ये एक कह सकते हैं कि एक हर कोई जो है एक यूट्यूब कंटेंट अलग से बनाने के लिए, अवेलेबल करने के लिए जैसे कि स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कि गाइज आपको उसको लेकर के आपका विजन क्या है, क्या आप इफ यू रियली वांट्स टू एजुकेट योर ऑडियंसेस, फिर डिपेंड करता है गाइज आपकी टारगेट ऑडियंस उसमें कौन सी है। क्योंकि यूट्यूब तो गाइज एक 4 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल का आदमी तक भी आजकल उसको चला रहा है गाइज। और उनके जो शौक हैं या उनकी जो पर्सपेक्टिव्स है देखने पे यूट्यूब पे, वो सारी डिफरेंट है। कोई तारक मेहता देखता है, कोई नरेंद्र मोदी जी को देखेगा, कोई किसी और फिल्म स्टार की मूवी देखता है, कोई किसी को साउथ की मूवीज ही पसंद है। तो सबसे पहले तो ये है कि गाइज आपका पर्सपेक्टिव उसके लिए बहुत क्लियर होना जरूरी है। फिर
आपको शुरुआत में जो है गाइस उस ब्रांडिंग उसको लर्न करने के लिए कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन भी देखिए गाइस करना जरूरी है, क्योंकि ब्रांड जो है रातों रात नहीं बनता गाइस, ब्रांड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हर्ष है, आज हर्ष का ब्रांड काफी ग्रोइंग हो चुका है। तो क्योंकि मैं हर्ष को तब से जानता हूँ जब हर्ष ने इसकी ब्रांडिंग करनी स्टार्ट की थी। तो ये है कि हाँ, आप ये चीज हर्ष से बेटर और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये है कि गाइस ब्रांडिंग अपने खुद को कैसे आप हाउ यू कैन प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स, तो ये चीजें गाइस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपका पर्सपेक्टिव साफ होना चाहिए, फिर डिपेंड करता है आपकी उसको लेकर के आपकी मार्केटिंग कैसी है गाइस। खाली यही थोड़ी ना है कि घर के 4 आदमियों को पता है कि आज मेरा बच्चा या जो भी है, एक एग्जाम्पल के मेरा कजन जो है यूट्यूब रन कर रहा है, आपके आस पड़ोस में भी पता होना चाहिए। फिर वो गाइस सारा सिलेक्शन आपकी ऑडियंस पे आ जाता है, विजन, मिशन, पर्सपेक्टिव, कितने ऑथेंटिक हो आप उन चीजों को लेकर के, आपकी कितनी एम्पैथेटिक अप्रोच है अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, ये काफी चीजें मायने रखती है। तब जाकर के गाइस एक 6 महीने 1 साल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पर्सनैलिटी जो है बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी गाइस आपके आसपास से, क्योंकि फिर क्या है गाइस, हर किसी के दिमाग में एक मैट्रिक्स होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, सबके, मेरे में भी आता है कि यार मैं इतना साल से, मेरे को इतना टाइम तो हो गया काम करते हुए, इतने प्रोजेक्ट्स भी रन हो गए, अब अपनी ब्रांडिंग हो भी रही है या नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ गाइस रहता है। ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि लाइक जैसे वो परफेक्शन वाली जो बात होती है ना सर, कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले परफेक्ट हो जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो लाइक वो है कि मेरा जो भी मैं चीज़ें स्टार्ट करता हूँ परफेक्शनिज्म के पीछे रह जाता हूँ, फिर वो स्टार्ट नहीं कर पाता। तो वो है कि लाइक स्टार्ट कर दे और परफेक्ट होते रहेंगे वो चीज़ में कि पहले परफेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करें। नहीं, पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। सॉरी, आपका मैं नाम भूल गया। साहिल। ओके साहिल, आई गॉट इट। साहिल, सबसे पहले परफेक्शन का आप वेट मत करो, क्योंकि देखिए ये कि परफेक्शन तो साहिल एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के बाद में आएगी गाइस। फॉर एग्जांपल, एक बंदा 10 किलोमीटर डेली दौड़ रहा है गाइस, ठीक है, अब उसके जीन्स और हार्मोन को तो चेंज होने में गाइस कम से कम 1 साल या 6 महीने का समय तो लगेगा। फॉर एग्जांपल, अ गाय हु इज डूइंग जिम, हु इज 103 kg, हु इज 103 kilograms, और वो अब डेली 3-4 दिन से जिम जा रहा है, 3 किलो वजन उसने 5 दिन में घटा लिया। दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन दैट हाँ वाकई मेहनत कर रहा है। अब उसको गाइस 90 किलो या 80 किलो तक आने में तो कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ना। तो डोंट वेट फॉर दैट काइंड ऑफ परफेक्शनशिप इनटू योर वर्क एज वेल एज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार परफेक्शन तो आ ही नहीं रही, तो इस चीज के ऊपर गाइस ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, इंसान ठोकर खा के ही जो है एक वो पत्थर हीरे के रूप में तराश करके बाहर आता है। तो उस तरीके का माइंडसेट गाइस हमें अपने लिए भी बिल्डअप करना जरूरी है। Yes, sir. वेलकम। Anyone more want to ask anything? Any doubts? Any kind of thing related to the professional world and all, you can ask. Any question? You have anything related to your project also, you can ask. Any help you need, any kind of assistance. Okay, sir. Like it was really great, sir, that you have given your time to us, and it means a lot for us because the knowledge which you have shared. Like there is one question. You have question. Okay, Mohit, you have any question? Feel free to ask. Like that only you will practice try how to communicate with each other. How you will communicate with the industry other than. You have any question? Okay, so they don't like if they will have any question, I will share your LinkedIn ID with them too, so that they can share, and they can also share your you all can share your resume. If you have any doubts, you can ask to him. He is expert in that. And thank you so much, sir, for giving your time, and we will see you again, sir, in one more innovative and motivating session like this, and it really helpful for all the students. Thank you so much, sir, for giving your time and efforts. Thank you, sir. Thank you, Harsh. Thank you, guys. Bye, guys. Thank you.